everyone, welcome to this new series that we are starting, that is 1000 plus PYQs. This is the first class today. I hope you guys are doing well. तो इस सीरीज में हम लोग 1000 प्लस PYQs करेंगे फॉर पेपर 1. दैट व्हाट इज द नेम ऑफ पेपर 1? दैट इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जब हमने ओरिएंटेशन लिया था, दैट देयर आर 3 यूनिट्स दैट आई विल बी डीलिंग. That is teaching aptitude, communication and people development and environment. So today's class is dedicated to PYQs related to teaching aptitude. And ऐसे ही हम कुछ classes teaching aptitude की देखेंगे, then communication and then environment. So you will be shown the first question and then I'll show you the answer, and we will be talking about the each option there in detail, and बाद में हम concept भी देखेंगे. So this is the first question, जो कि आप देख सकते हो जून 2024 में पूछा है. So knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice, is an example of self-regulation, metacognition, self-discipline or automation. Now this is a very interesting question. I'll give you time, think about it a little. Let me just give you space and then we will discuss about it. So ek bari just think about it and then we'll go forward. In the classes we have discussed about all of these things in greater detail. What do we mean by automation? ऑटोमेशन बेसिकली वैसे तो टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क, जो कि ताकि आपका ह्यूमन ब्रेन से लोड कम हो जाए, उससे ऑटोमेशन कह सकते हैं, या फिर क्विकली परफॉर्मिंग दोज थिंग्स ऑन योर ओन. बट क्या यहाँ पे ये वो ऑटोमेशन है? थिंक अबाउट इट. व्हाट वुड बी द राइट आंसर? So here the right answer would be, क्या होगा right answer? B would be the right answer. That means metacognition would be the right answer. Let us discuss about it. This is one of the most important concept and this is the I think the third class जो हम class में discuss भी करते हैं. So self regulated learning का concept paper में अब बहुत बार आता है. Self regulated लर्निंग, वी आर बिकमिंग एडल्ट्स, हमें टीचर का सपोर्ट चाहिए. थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन एंड टीचर यही चाहती है इन सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, दैट वी डू थिंग्स ऑन आवर ओन, वी परफॉर्म एक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू आवर ओन कैपेबिलिटी ऑफ और अकॉर्डिंग टू आवर ओन थॉट प्रोसेस. सो उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन. सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? अपने आप को सही पाथ दिखाना इज सेल्फ रेगुलेशन. मेटाकॉग्निशन इज नोइंग अबाउट योरसेल्फ, नोइंग द आर्ट ऑफ थिंकिंग. Thinking about thinking is metacognition. So knowing that you find algebra more difficult than your sister, but you can improve that with practice. आपके अंदर जो कमी है आपको already पता है. That is metacognition. It is not self-discipline and it is not automation. Here automation is also not related to technology. Here it means like automatic memory, जो खुद से ही आपको brain में जो thoughts आते हैं one after another. That is also automation. But here we are talking about metacognition. Please write it down. What exactly is metacognition? So metacognition is thinking about our own thinking. वो क्या होता है? Thinking about our own thinking is called as metacognition. उसे क्या कहते हैं? Metacognition कहते हैं. So here we are becoming more and more critical about ourselves. So it is also an art of critical thinking. हम क्या हो रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए critical हो रहे हैं. It is critical thinking. It is also called as self-regulated learning. इसे हम क्या कहते हैं? Self-regulated learning भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पे the concept of metacognition is used. Metacognition, and the whole metacognition knowledge can be divided into 3 parts. 3 तरीके की हो सकती है metacognition की knowledge. First is declarative knowledge. Declarative knowledge.
declarative knowledge, I'll explain you everything, पहले लिख लो declarative, then procedural knowledge, declarative knowledge, procedural knowledge and conditional knowledge. एंड कंडीशनल नॉलेज, अब पेपर में ये भी आ जाता है. सो डेक्लरेटिव नॉलेज इज नोइंग अबाउट वन सेल्फ. डेक्लरेटिव इज व्हेन यू नो अबाउट ओन सेल्फ, अपने बारे में जान लेना इज डेक्लरेटिव नॉलेज. डेक्लरेटिव नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एज अ लर्नर. हाउ वॉज वंस परफॉर्मेंस, हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई लाइक डूइंग, दैट इज डेक्लरेटिव नॉलेज. देन व्हाट इज प्रोसीजरल नॉलेज? स्किल्स एंड ह्यूरिस्टिक नॉलेज. आपके अंदर क्या स्किल सेट है या फिर ह्यूरिस्टिक and heuristic knowledge. What is heuristic? Armstrong talked about heuristic knowledge, जिसे हम कहते हैं किस तरीके से you can navigate the right paths on your own, you can find the right paths on your own. किसने इसके बारे में बात की थी? It was Armstrong who talked about it. नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये this is Armstrong who talked about it. Heuristic knowledge on your own skill set. Write this down. राइट, नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स. बेसिकली प्रोसीजर बता रहे हैं, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू डू थिंग्स के बारे में आपको प्रोसीजरल नॉलेज बताता है. एंड कंडीशनल नॉलेज इज अबाउट व्हेन एंड व्हाट कंडीशंस द नॉलेज इज यूजफुल. तो व्हेन एंड इन व्हाट कंडीशंस द नॉलेज वुड बी यूजफुल. मैंने सीख तो लिया बट कहाँ मुझे इसे अप्लाई करना है, दैट इज कंडीशनल नॉलेज. ऑल ऑफ दिस कम्स इन द डोमेन ऑफ मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट दिस डाउन. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है? सो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है? थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड. कॉग्निशन क्या है? मेटा कॉग्निशन देखो दो वर्ड से बनता है ना, मेटा से बन गया प्लस कॉग्निशन. सो व्हाट इज कॉग्निटिव? कॉग्निटिव आता है, कॉग्निशन कॉग्निटिव लर्निंग से ही आया. जब आप क्या कर रहे हो, मेंटल कैपेबिलिटी, अपनी मेंटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हो, मेंटल कैपेबिलिटी, एंड उसमें मेटा लग गया है, मतलब कैसे सोचना है के बारे में भी सोचना, मैं क्या कर सकती हूं, कैसे आई कैन नेविगेट द पाथ. That is called as metacognition. Metacognition is the ability to control your own cognition, your own thoughts. मुझे नहीं डरना, कहाँ पे मुझे self efficacy, self belief दिखाना है. That is all under metacognition. My own skill set. Write it down. How can I have my own knowledge? How can I become more and more task oriented, more and more skillful? अब मेटाकॉग्निशन का एक प्रोसेस भी होता है जो आपको याद रखना चाहिए. आप प्लानिंग करते हो पहले, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये तीन स्टेप्स आते हैं मेटाकॉग्निशन के अंडर. अंडर मेटाकॉग्निशन, राइट इट डाउन. These are also called as the phases of metacognition. Write it down. Should we move forward? I hope you guys understood about what is self-regulation. Basically, self-regulated learning
को ही हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, या कह सकते हो मेटाकॉग्निशन को ही सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, बट यहाँ पे ये रेगुलेट नहीं कर रहा है. द पर्सन हेयर, शी इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, शी इज ट्राइंग टू सी हाउ शी कैन कंट्रोल हर ओन इमोशंस एंड प्रैक्टिस थिंग्स. सो मेटाकॉग्निशन हमने मार्क कर दिया. अदरवाइज सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो लाइक मेटाकॉग्निशन ओनली. फाइंडिंग योर ओन पाथ इज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. सो पेपर में रिसेंटली सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से भी क्वेश्चन आया था. उन्होंने पता है क्या पूछा था? दे आस्क्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. सो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के कुछ स्टेप्स होते हैं. लेट अस राइट अबाउट दीज स्टेप्स सो दैट अगर बाकी बाद में कोई पेपर में आ जाए तो यू हैव ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू इट. यू फर्स्ट एनालाइज द टास्क. सो एनालिसिस ऑफ द टास्क, जो भी टीचर आपको टास्क देती है आप उसे एनालाइज करो कि क्या मैं ये कर सकता हूं या ये नहीं कर सकता हूं. सो एनालाइजिंग द टास्क. देन यू सेट गोल्स. व्हाट डू यू डू? यू सेट गोल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट, तो एंड दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक यू 10 days ऑल टुगेदर. सो यू विल एनालाइज द प्रोजेक्ट फर्स्ट, देन यू विल सेट गोल्स. ठीक है, 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन लगने हैं, रोज 1-1 घंटा पढ़ लेंगे. तो इस तरीके से यू विल एनालाइज द थिंग्स, यू विल सेट गोल्स, देन यू विल फाइंड स्ट्रैटेजीज. आप खुद स्ट्रैटेजीज ढूंढोगे इसकी. यहाँ पे भी कॉग्निशन यूज हो जाएगा. सो यू विल फाइंड एंड यू विल प्लान डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड देन यू विल सेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द आउटकम. आप अपनी सेट एक्सपेक्टेशंस करोगे. सेट एक्सपेक्टेशंस एंड साथ में यू विल मॉनिटर and evaluation will be done at the end. So these are the things that are done by a self-regulated learner. एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर ये सारी चीजें करते हैं. प्लीज राइट इट डाउन. सो दे प्लान, दे यूज स्ट्रैटेजीज एंड दे रिफ्लेक्ट. इट्स अ सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर. अ पर्सन who is a self-regulated learner? A self-regulated learner is always self-motivated. उन्हें क्या होता है? उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी होती है. Now self efficacy versus self esteem, ये भी पेपर में आ गया था. सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या होती है? कि आपकी मॉरल वैल्यूज, आपकी अपनी मॉरल वैल्यू अपनी खुद की आईज में, आपकी वैल्यू आपकी आईज में कैसी है, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी बुरी हूं. दैट इज व्हाट, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एफिकेसी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क. तो यहाँ पे हम जो पर्सन के लिए बारे में रीड कर रहे हैं क्वेश्चन, उनके अंदर काफी ज्यादा सेल्फ एफिकेसी है टू डू अ टास्क, लेकिन शायद सेल्फ एस्टीम उनके अंदर कम हो, मोरल बूस्टिंग कम हो उनकी, लेकिन सेल्फ एफिकेसी, प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा है उनके अंदर, एबिलिटी टू परफॉर्म ज्यादा है. दिस मीन्स उनका एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत आता है, लोकस ऑफ कंट्रोल. मेरा खुद का लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है? इंट्रिंसिक है. इंट्रिंसिक मतलब इनर है, इनर सेल्फ में है, इनर सेल्फ में. तो माई लोकस ऑफ कंट्रोल, दिस मीन्स माई मोटिवेशन लेवल, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, कम्स फ्रॉम विद इन. दैट मीन्स इट इज इंट्रिंसिक. सो एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पेपर में आते हैं. अगर लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब टीचर आपको बहुत जबरदस्ती करके पढ़ाती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल नहीं है. ठीक है, तो जब भी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो ये वाली सारी चीजें आपको याद रखनी है. राइट नाउ द आंसर वाज मेटाकॉग्निशन. और यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ नोइंग या नॉलेज के बारे में भी पेपर में आता है. डेक्लरेटिव, प्रोसीजरल एंड कंडीशनल. उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. एंड ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? कि आपको खुद को पता है सही गलत क्या है. यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू. यू आर डिसिप्लिन. सो अ सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर हु हैज अ सेल्फ, यू कैन से हु सेल्फ मोटिवेटेड, he also, she also will have a self डिसिप्लिन एटीट्यूड. खुद को संभालना उन्हें आता होगा. अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, क्या करना? अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है. सो एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर सेल्फ मेटाकॉग्निशन करता है, सेल्फ डिसिप्लिन रखता है एंड ऑटोमेशन भी करता है.
आई होप अब समझ आ गया होगा आपको, राइट आंसर बी है, ठीक है। Okay, which of the following approaches to the study of reality suggests that only knowledge gained through experience and senses are acceptable? बहुत ही इजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, एथनोग्राफी, इंपेरिसिज्म, ऑपरेशनलिज्म। सो हमने इज्म्स पढ़े थे क्लास में। अब ये इज्म्स क्या है? दीज आर द फिलोसफीज, पेरेनियलिज्म, राइट, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, वहीं से ही क्वेश्चन आ गया है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो सो दैट यू लैंड योर सेल्फ ऑन द राइट आंसर। एंड एक और चीज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस वाले क्वेश्चन में एक होमवर्क ले लो, टेक वन होमवर्क, या फिर हम अभी कर सकते हैं, लेट अस डू दिस हेयर ओनली, अभी करते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट। सो जिमरमैन का मॉडल है, जिमरमैन्स मॉडल, self-regulated learning, yeah. So Zimmerman in 1998 suggested that there can be social cognitive model and there can be self-regulated learning, है ना, self-regulated learning। तो इनकी एक मॉडल डिस्कस करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इजी। सो आई होप दिस इज विजिबल। एक पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो जिमरमैन ने क्या कहा था? जिमरमैन सेड दैट देयर आर डिफरेंट फेजेस थ्रू विच अ पर्सन गोज, एंड जिमरमैन के मॉडल से ये पेपर में आता है। सो कैसे कैसे फेजेस होते हैं? द फर्स्ट फेज इज द फोरथॉट फेज, जहां पे आप टास्क एनालाइज करते हो, गोल सेट करते हो एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो। देन आप सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग करने के लिए स्टार्ट करते हो, जिसमें आपके बिलीव्स आ जाते हैं। सो हेयर सेल्फ एफिकेसी, आउटकम एक्सपेक्टेशंस, task interest and value and goal orientation becomes important. Then we have the performance phase. एक बारी एनालाइज कर लिया तो परफॉर्म करोगे, तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, टास्क स्ट्रैटेजीज एज वेल एज सेल्फ इंस्ट्रक्शन, इमेजरी, टाइम मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चरिंग एंड हेल्प सीकिंग करते हो। साथ में यू हैव इंटरेस्ट एनहांसमेंट एंड यू कैन से कंसेक्यूटिवली, बारी बारी कॉन्शियसली सारे काम खुद करोगे। देन सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर मेटा कॉग्निटिव मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रिकॉर्डिंग वुड बी डन। आफ्टर दैट आप रिफ्लेक्ट करते हो, काम कर लिया, एनालाइज कर लिया, कर भी दिया, एनालाइज करने के बाद आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे। सो लुकिंग एट दोज थिंग्स, राइट, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जैसा। तो वी हैव सेल्फ जजमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, कैजुअल एट्रीब्यूशन एंड सेल्फ रिएक्शन। फिर रिएक्ट करोगे, क्या आपको सेटिस्फैक्शन हुई या आपको दोबारा काम करना है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन यू। देन अडैप्टिव एंड डिफेंसिव। सो दीज are the things that are involved in the various phases. So according to Zimmerman there are 3 phases. कौन सा है? forethought phase, there is performance phase and there is self reflection phase. So these are the 3 phases that a person goes through जब वो self regulated learning कर रहा है। So in 2022 this was also asked in your paper, so try to learn and read about this model also. इसे होमवर्क भी ले सकते हो इफ यू वांट टू डू। जिमरमैन का मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, उससे एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है। राइट इट डाउन। जिमरमैन्स मॉडल फॉर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, बहुत रेडिली अवेलेबल, आपको इसकी फोटोज मिल जाएंगी, उनसे ही समझ लेना। देन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक आपने डेफिनेटली आंसर सोच ही लिया होगा। होता क्या है, सबसे पहले एलिमिनेशन लगा लेते हैं। वैसे राइट आंसर वुड बी सी, वी ऑल नो दिस। इंपेरिसिज्म इज द राइट आंसर। इंपेरिसिज्म होता ही है कि आप कैसे सीखते हो, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। एक बच्चा कैसे सीखता है? एक्सपीरियंस करके सीखता है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट चीजों को एनकाउंटर करते हैं एंड द बेस्ट टाइप ऑफ नॉलेज दैट वी गेन इज ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। सो
the question was, which of the following approaches to the study of the reality suggest that only knowledge gained through experience is the most applicable and the correct, the acceptable knowledge that we have? It is empiricism जो कहता है that experiences सही है. Now constructivism क्या होता है? It says that the knowledge is constructed slowly and steadily. So सबसे पहले we don't have anything. आप कोई चीज सीखते हो, फिर उसके ऊपर कुछ और चीज सीखते हो. जैसे नाउन्स की पहली क्लास हुई क्लास में, उसके बाद टीचर ने नाउन्स की सेकंड क्लास ली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. आप कनेक्ट करते चले गए, चीजें समझते चले गए, राइट? सो फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म. बट यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, तो ये सही आंसर नहीं है. एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस की स्टडी होती है, तो ये भी सही नहीं है. ऑपरेशनलिज्म तो बिल्कुल ही सही नहीं है. राइट आंसर वुड बी एम्पिरिसिज्म. राइट आंसर क्या है? एम्पिरिसिज्म. अब यहां से भी आप क्या गेन कर सकते हो? दैट दे आर स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इज्म, तो प्लीज उसे पढ़ो, ठीक है? रीड अबाउट इट. आई विल गिव यू अ मिनट, इसे नोट कर लो, देन वील गो फॉरवर्ड. एंड पेपर में कभी कभी ये भी आ जाता है, जॉन लॉक ने क्या कहा था. सो जॉन लॉक तो हमने सबने पढ़ा ही है ना? आई होप दिस इज क्लियर. आई होप यू गाइस हैव रिटन दिस. एनीवे, तो ये पहले एक बार देख लो, जॉन लॉक ने क्या कहा था. जॉन लॉक टॉक्ड अबाउट टैब्यूला रासा. उन्होंने किसके बारे में बात की थी? टैब्यूला रासा के बारे में. ही सेड दैट वी आर बोर्न विद ब्लैंक स्लेट्स. हम ब्लैंक स्लेट्स के साथ बॉर्न होते हैं. ह्यूमन ब्रेन कैसा है? ब्लैंक स्लेट जैसा है. एंड धीरे धीरे जो भी हमारे साथ होता रहता है, ये सारे क्या है? हमारे एक्सपीरियंसेस हैं. सो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस एनकाउंटर करते हैं, हमें चीजें समझ आने लगती हैं. दिस इज ऑल्सो एम्पिरिसिज्म. इसके बारे में आई रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल इन द क्लास ऑल्सो, एंड आई होप यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. ये इजम्स पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है? What is realism? रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म होता है रियलिटी. जो आप देख पा रहे हो ना, उसी को ही सच मानना. तो अगर आप गॉड को नहीं देख पा रहे हो, तो गॉड शायद सही नहीं है. दैट इज व्हाट द रियलिस्ट पीपल टॉक्ड अबाउट. दे यूजुअली बिलीव इन द रियलिटी. देन वी हैव आइडियलिज्म. आइडियलिज्म है जो गॉड में बहुत बिलीव करते हैं. वो एक वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत मानते हैं, वन सोर्स ऑफ पावर में मानते हैं. दैट इज आइडियलिज्म. सो रियलिज्म, आइडियलिज्म, पेरिनियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म. कॉग्निटिविज्म क्या होता है? कॉग्निटिविज्म इज मेंटल कैपेबिलिटी. अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा. ऐसे ही बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म के बारे में थ्योरी में किसने बात की है? सो वी हैव इवान पावलोव, Watson, Ivan Pavlov, Watson, as well as B.F. Skinner, जिन्होंने बिहेवियरिज्म थ्योरी के बारे में बात की है. वो क्या होता है? Ivan Pavlov said that there is what? There is conditioning that you can do in your brain. You can change the behavior of the person through conditioning. And it is done when you are repetitively doing few things and providing a stimulus and response. The person's mind is conditioned, right? So here he used an experiment that he did on dog. Classical conditioning. क्या दिया इन्होंने? Classical conditioning का मॉडल दिया. वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट, अपना खुद के बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया, लिटिल एल्बर्ट पर, और कंडीशनिंग के बारे में ही बात करी. एंड B.F. स्किनर ने बात करी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जहां से ही टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कि सही किया है बच्चे ने तो उन्हें बेनिफिट्स दो, रिवॉर्ड्स दो, गलत किया है तो पनिशमेंट दो, तभी वो चीजें सीखेंगे, राइट? So cognitivism, behaviorism, constructivism, cognitivism, then we have empiricism. These are important theories. आगे चलते हैं. Which of the following are the subdivisions of implicit, that is unconscious memory? Priming, episodic memory, classical conditioning effect, semantic memory and procedural memory. मेमोरी होगा ये, ठीक है? आई गिव यू टाइम फॉर दिस क्वेश्चन. आराम से यू नीड टू एनालाइज दिस क्वेश्चन.
सो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म मेमोरीज के बारे में बात हो रही है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. टेल मी द राइट आंसर. प्राइमिंग. सो इम्प्लिसिट मेमोरीज के अंदर कौन सी आएंगी? प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी. Okay, so the right answer is C, that is A, C and E. A, C and E. तो सबसे पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या है? अनकॉन्शियस मेमोरी. एक्सप्लिसिट इज कॉन्शियस मेमोरी. सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है. तो एक बार इसको देख लेते हैं. दोनों ही वैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. एक बार इसे फॉर्म कर लो, देन वील कीप ऑन राइटिंग द डिफरेंसेस लिखेंगे. सो इम्प्लिसिट मेमोरी इज कॉल्ड एज द अनकॉन्शियस मेमोरी. ये अनकॉन्शियस मेमोरी है. और ये कैसी मेमोरी है? कॉन्शियस मेमोरी. भाई याद करना पड़ रहा है. यू डोंट रिमेंबर थिंग्स बट यू हैव टू लर्न थिंग्स. Conscious, unconscious. So here, retrieval, consciously you retrieve things. Consciously, conscious retrieval. अब retrieval क्या होता है? Retrieval is also conscious. मेमोरी स्टोर करना भी ब्रेन का काम है, वापस लाना भी ब्रेन का काम है. वापस लाने के प्रोसेस को, ब्रिंगिंग द मेमोरी बैक, इज कॉल्ड एज रिट्रीवल. सो रिट्रीवल भी कॉन्शियस है और यहां पे रिट्रीवल भी अनकॉन्शियस है. ये क्या है? अनकॉन्शियस है. सो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसे डिवाइड कर लो. ये नॉन वर्बल होती है, बहुत ज्यादा नॉन वर्बल है. एंड ये मोस्टली कैसी होती है? वर्बल इन नेचर होती है, वर्बल इन नेचर. सो हियर वी हैव प्रोसीजरल, एंड प्राइमिंग. सबसे दो इंपॉर्टेंट, प्रोसीजरल, प्राइमिंग एंड इमोशनली ड्रिवन. इमोशनली जब आप किसी मेमोरी को याद करते हो, ठीक है, सोमैटिकली भी बोलते हैं उसको, सोमैटिकली इमोशन बेस्ड होती है. डेक्लरेटिव जो कि फिगर, फैक्ट्स होते हैं. डेक्लरेटिव मेमोरी एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है. सिमेंटिक मेमोरी जो कि जनरल नॉलेज या फैक्ट्स होते हैं. जनरल फैक्ट्स जो सबके लिए सेम होंगे. डेक्लरेटिव, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक. एपिसोडिक क्या होता है? जब आप किसी प्रॉपर इवेंट्स को याद करो, वो होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी. यू रिकॉल पर्सनल इवेंट्स, यू रिकॉल एक्सपीरियंसेस. सो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? एक्सप्लिसिट. अब यहां आ जाते हैं. प्राइमिंग अभी हमने देखा किसका पार्ट है? इम्प्लिसिट का. एपिसोडिक गलत हो गया, तो बी जहां पे उसे कट भी कर सकते थे. बी जैसे ही कट किया, राइट आंसर मिल गया. ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, क्विक वर्क. तो क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स क्या होता है? इमोशनली रेगुलेट करना किसी चीज को. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया. कि आपको ऑलरेडी समझ भी नहीं आया कब हमने स्टिम्युलस रिस्पॉन्स देके आपकी बॉडी को उस चीज से इंटरमिंगल कर दिया है. एंड सिमेंटिक मेमोरी दोबारा से किसका पार्ट है? डी. दोबारा से इट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी क्या है आपकी? इम्प्लिसिट मेमोरी होती है.
राइट इट डाउन. सो प्रोसीजरल बेसिकली आपके एक्शंस होते हैं, है ना. एक्शंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है उसका प्रोसीजर कि आपको घर कैसे जाना है. इतने टाइम कर करके आपके वो अनकॉन्शियसली ब्रेन में सेटल्ड है दैट आपको घर कैसे जाना है. वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है. यू नो द प्रोसीजर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल मेमोरी. Procedural memory. And what is priming? Priming are the non-voluntarily done actions. आपकी मोटर स्किल्स सारी प्रोसीजरल होती है. नॉन वॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज प्राइमिंग हो जाता है. प्लीज राइट इट डाउन. इसे लिखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड इसके साथ साथ कभी कभी एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आई वॉन्ट यू टू राइट दिस ऑल्सो. इसके बारे में भी लिख लो. जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी मेमोरी है वो कैसी हो सकती है. सो मेमोरी कैन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, जहां पे आप क्या करते हो, रिटेनिंग ऑफ द मेमोरी करते हो, रिटेनिंग ऑफ द फैक्ट्स, बारी बारी रिटेन करते हो. कुछ होती है हमारी वर्किंग मेमोरी. हियर ऑटोमेटिक कंडक्ट्स आर डन, जैसे ड्राइविंग या राइटिंग करते टाइम, है ना. एंड देन वी हैव द लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में, एंड यहां पे हम क्या यूज करते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं, बिकॉज हम एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करके याद रखते हैं. ओके, आगे चल सकते हैं. ठीक है. सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स. मार्च 2023 का क्वेश्चन है. द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. व्हाट वुड बी द राइट आंसर? The learner centered approach is centered on teacher needs, and the learner centered approach is centered on cooperative determination of subject matter. So the right answer is D right answer है. Statement 1 incorrect है but 2 correct है. Now this was again a very easy question. Learner centered और teacher centered approaches क्या है? So learner centered एज द वर्ड सेज, मतलब लर्नर को सेंटर में रखो. ये एक ऐसी लर्निंग है जो कहती है कि होलिस्टिक ग्रोथ करो लर्नर की. लर्नर को सेंटर में रखो. टीचर तब तक आगे नहीं चलेगी टिल द टाइम द लर्नर इज क्लियर विद द टॉपिक. दिस मीन्स दैट इन अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच किसको सेंटर में रखा जाएगा? लर्नर को सेंटर में रखा जाएगा. वाई टीचर? फॉर एग्जाम्पल हेयर हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, जीडी जिसे कहते हैं, रोल प्ले, सिम्युलेशन एटसेट्रा. ये लर्नर सेंटर्ड है. ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज करना आजकल. सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एक कॉर्पोरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से आती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सब लोग कॉपरेटिवली लर्न करते हैं. टीचर स्टूडेंट्स को टास्क देती हैं टू लर्न थिंग्स प्रॉपरली. सब कॉपरेट करके चीजों को खुद से ही सीखते हैं. राइट? सो दिस मीन्स दैट डी इज द राइट आंसर.
Which of the following is a technique to provide the right kind of support in the right amount at the right time to increase the child's competence? Scaffolding, assistance, accommodation and schemas. यहां पे सही आंसर क्या होगा? So the right answer would be A. Right answer क्या होगा? A. Scaffolding. Now जैसे ही आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन नजर आया, आई एम प्रिटी श्योर लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी याद आई होगी. सो हमने लेव की थ्योरी में क्या देखा था? लेव टॉक्ड अबाउट द कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग. क्या था कॉग्निटिव थ्योरी इनकी? सो हिज cognitive theory said that the child always learns, according to Lev Vygotsky, child always learns with the interaction of the other. So the more knowledgeable other, MKO, जब less knowledgeable other के साथ interact करता है तभी complete knowledge आती है. एक चीज analyze करते हैं. सबसे पहले we discussed this in the class so many times. यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं. द फर्स्ट जोन, दिस जोन इज अ जोन वेयर यू आर वेरी कंफर्टेबल. सो दिस इज अ जोन वेयर यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन. सो नॉट मच लर्निंग इज हैपनिंग हियर. ओके, ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है. स्टीफन केशॉन ऑल्सो सेड दैट 1+ होना चाहिए हर जगह पे. कुछ एक्स्ट्रा ही बताती हैं टीचर आपको लर्न करने में. तो यहाँ तो आप कंफर्ट जोन में हो, आप कुछ लर्न ही नहीं करोगे. ये वो जोन हो गया जो आउट ऑफ योर कंफर्ट हो गया. तो किसी के पढ़ाने पर भी चीजें ना समझ आना, ये तो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल जोन है. यहां पे भी नहीं रहा जा सकता. बट दिस जोन इज अ जोन दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देते हुए बोला दैट व्हेन यू इंटरैक्ट विद द मोर नॉलेजेबल अदर, जब हमारे लर्नर टीचर के साथ, यहाँ पे टीचर ही है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, इंटरैक्ट करते हैं तो हमें ज्यादा चीजें समझ आती हैं. दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग. व्हाट इज असिस्टेंस? असिस्टेंस है हेल्प करना, लेकिन यहाँ पे टीचर असिस्टेंस नहीं कर रही है, स्कैफोल्डिंग कर रही है. एकोमोडेशन होता है नई चीजें एक साथ एकोमोडेट करना. ये किसने दिया है? पियाजे ने इसके बारे में बात की है. एंड स्कीमास क्या होता है? ये भी पियाजे ने ही बात किया है. बट स्कीमास क्या है? स्कीमास आर चंक्स ऑफ नॉलेज. क्या है? चंक्स ऑफ नॉलेज है जिनको आप एक साथ एनालाइज करते हो, सीखते हो आगे बढ़ने के लिए. सो स्मॉल चंक्स ऑफ नॉलेज जो आप कलेक्ट करते हो फॉर हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, दीज स्मॉल चंक्स आर कॉल्ड एज स्कीमास. इनको एक साथ रख के समझना, एकोमोडेट करना होता है. इन्हें इंटरनलाइज कर लेना क्या होता है? एसिमुलेशन होता है. एसिमुलेशन. बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है. जीन पियाजे की थ्योरी है जो, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे. एसिमुलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, स्कीमास. बट यहां हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज स्कैफोल्डिंग. राइट? आई होप दिस इज क्लियर. देन अ लर्नर कंबाइंस हर or his previous schemas or modifies them as per the new experiences. The process of combining, modifying existing schemas to arrive at new schemas are called as, very important, accommodation, assimilation, adaptation or equilibrium. So a learner combine करता है अपने पुराने schemas, मतलब अपनी पुरानी knowledge, और modifies them as per new experiences, नए एक्सपीरियंस सीखने के लिए. This process of combining and modifying the schemas and arriving at the new set of knowledge is called as, this is called as, A becomes the right answer, accommodation. आप क्या कर रहे हो? न्यू ओल्ड को साथ रख रहे हो, दैट इज एकोमोडेट कर रहे हो, एक साथ चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो. ओके. Then, which of the following curriculum development model come under technical scientific model? Open classroom model. Then we have Toba's model, Weinstein and Fantini model, Rogers model for personal relations.
सो हिल्डा टाबा, ये हिल्डा टाबा होगा, हिल्डा टाबा, हिल्डा टाबाज मॉडल, हिल्डा टाबा मॉडल, ओपन क्लासरूम मॉडल, Weinstein and Fatini model, or Rogers model for personal relations. Again, I'll give you time to analyze this question. साइंटिफिक या फिर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में बात हो रही है. What should be the right answer? ओके, सो बेसिकली अगर हम टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में जाने, व्हाट ऑल आर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स? सो दीज आर द मॉडल्स विच बेसिकली हेल्प्स यू टू एनालाइज थिंग्स. आप किसी चीज का एनालिसिस जब अच्छे से करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? दैट मॉडल. यू एनालाइज, यू एम्फसाइज ऑन प्लानिंग. सबसे पहले तो आप प्लानिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हो, प्लानिंग करते हो, एनालाइज करते हो, आप क्या करते हो? इंप्लीमेंट करते हो चीजों की. देन इंप्लीमेंटेशन इज डन, एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन इज डन. व्हेन यू हैव दिस होल प्रोसीजर to analyze the things, that is called as technical scientific model. and Hilda Taba, Tyler's model, ये कुछ important models हैं. ठीक है, तो B right answer है, that is Hilda Taba. Hilda Taba का मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के लिए, राइट? यू शुड नो कि टेक्निकल मॉडल्स होते कौन से हैं. सो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दो तरीके के मॉडल्स हैं. जितने भी टेक्निकल मॉडल्स होंगे, दे यूज वेरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज टू टीच द स्टूडेंट्स. जैसे कि वो टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं. क्या करते हैं? टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज बहुत यूज होती हैं. कॉग्निटिव लर्निंग बहुत ज्यादा होती है. लीनियर एंड प्रोसीजरल, बहुत ज्यादा लॉजिकल मेमोरी होती है यहाँ पे बच्चों की. बहुत ज्यादा प्रोसीजरल लर्निंग होती है. दे आर कॉल्ड एज टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स. Okay, write it down. इसे लिख लो. Then I'll give you Hilda Taba's model. I'll make you write that model. I hope you have noted this. So B is the right answer. We have Hilda Taba's model, and we have the first thing that we do. The first thing that we do in this model, we diagnosis. So we diagnose the need. Diagnosis is done. Diagnosis of needs is done. This is the first step that is taken. The second step is formulating objectives. Formulating objectives. This is the second step. Then comes the third step, that is selecting content. You select the content and then you organize. Selecting content and analyzing and organizing the content, कि वो सबको समझ आए. You organize the content, write it down. This is the fourth step. The fourth step. Then select learning experiences. You select learning experiences. You organize learning experiences. Organize learning experiences. Here, cognitive and affective strategies are needed. Cognitive and affective strategies, और last में evaluation.
So when you are organizing learning experiences, the domains are very important. और कौन से domains हैं? So the model talks about the 3 domains also. The domains like we have the cognitive domain, affective domain and the psychomotor domain. So यहाँ पे आप दिमाग से सोच के काम ले रहे हो, दिल से सोच के and hands on learning करते हो. So this is Hilda Taba's model. Please इसे लिखो. Hilda Taba's model. So organizing के अंदर आप की concepts learn कर रहे होते हो. So what is basically, if I ask you the difference between technical and non-technical models, ये भी याद रखना, technical model हमेशा आपकी betterment के लिए होता है, betterment के लिए. यहाँ पे बहुत सारी आपको क्या नजर आती हैं, strategies नजर आती हैं. While अगर non-technical model होता है तो वो क्या देखता है, वो सिर्फ आपकी growth पे एम्फेसिस कर देगा. लेकिन जो टेक्निकल मॉडल होगा वो आपको स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करेगा हाउ टू गो फॉरवर्ड. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टू ग्रोथ है, बट दिस वन इज वेरी डीप. ओके, the science of studying the feedback system of humans, animals and machines are described as feedback science, experience study, message hermeneutics and cybernetics. So the right answer is D, cybernetics. Easy है कुछ क्वेश्चंस, तो आगे चलते हैं. According to NEP 2020, India will be promoted as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as economic power, education economy और विश्व गुरु और शिक्षा गुरु. What would be the right answer? Okay, so what should be the right answer? Let me tell you the right answer now. बहुत ही easy है. The right answer is C. C is the right answer. विश्व गुरु is the right answer. Why? Because NEP 2020 के अंदर एक ही बारे में बात हुई है और वो है रिसर्च की. हमने बोला है हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे एंड प्लस इंटरनेशनली भी एक्लेम करेंगे इंडिया को, जिसकी वजह से हम क्या बन जाएंगे, दोबारा से विश्व गुरु बन जाएंगे. सो आई विल रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट. You can write it down. So setting up a national research foundation, we have decided according to NEP 2020, India will become global study destination. Why? Because we are going to set up national research foundation. हम क्या set up करेंगे, national research फाउंडेशन सेटअप करेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप करेंगे फॉर रिसर्च एंड देयर विल बी इनोवेशन इन हायर एजुकेशन. एंड साथ में क्या आएगा, इनोवेशन इन हायर एजुकेशन. इनोवेशन इन हायर एजुकेशन. There will be establishment of an internationalized method of education authority, developing world class universities लाएंगे and will provide conducive environment for foreign students. So हम लोग will be bringing world class universities and जो कि आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं उनको भी इन्वॉल्व फील होगा. सो विश्व गुरु इज द राइट आंसर. देन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, वी हैव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग स्टाइल, लेटरलाइजेशन एंड इंटरफेरेंस.
characteristic approaches to learning and studying, the specialization of the two hemispheres of the brain cortex, a special kind of procedural knowledge, knowing how to approach learning tasks, the process that occurs when remembering certain information is hampered by the presence of other information. What should be the right answer? Now this question requires time. I'll give you time to read it as well. ऑप्शंस भी हैं, बट आई डोंट थिंक यू नीड इट, क्योंकि डायरेक्टली आप यहां से सॉल्व कर सकते हो. ओके, लेट मी टेल यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज बी. बी राइट आंसर है. A3 के साथ B1, 2 and 4, A with 3, B with 1. एक बार देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे उसके बाद. C with 2 and D with 4. ओके, वैसे तो बहुत इजी था. लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? अ स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोसीजरल स्किल्स, एक अप्रोच, किस तरीके से आप लर्निंग टास्क अचीव कर सकते हो. हाउ कैन यू लर्न थिंग्स इजी तरीके से, दैट आर स्ट्रैटेजीज. सो वो होता है लर्निंग स्ट्रैटेजी, स्पेशल प्रोसीजरल नॉलेज. लर्निंग स्टाइल क्या होता है? लर्निंग स्टाइल आर हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू लर्न. जैसे सबकी लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट. वार्क मॉडल किया था ना हमने, वार्क मॉडल. सो कोई विजुअली लर्न कर सकता है, कोई ऑडिटरी तरीके से लर्न करता है, कोई रीडिंग एंड राइटिंग से लर्न करता है, और कोई कैसे लर्न करता है? काइनेस्थेटिक तरीके से लर्न करता है. सो दिस इज वार्क मॉडल. फ्लेमिंग्स ने दिया था वार्क मॉडल. देन लेटरलाइजेशन क्या होता है? वो आपके 2 हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करता है आपके ब्रेन कॉर्टेक्स में, और इंटरफेरेंस होता है कि आप हैम्पर कर रहे हो एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज की वजह से. Given below are 2 statements. Education and training organizations have a curriculum as their primary product. Concepts of lifelong learning can extend such provisions, particularly through the use of new information technologies. You can again read the question and tell me the right answer. Education and training organizations have a curriculum as their primary product. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के लिए है, करिकुलम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है. The concepts of lifelong learning can extend such provisions, particularly through the use of new information technologies. The right answer would be A. That means both the statements are true. ये बिल्कुल true है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ सेट पैटर्न करिकुलम आगे बढ़ ही नहीं सकती है. करिकुलम, कंटेंट, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच इज नीडेड. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है. देन अगर आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग लाओगे, उनको समझाने का इजी तरीका है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करना, ज्यादा अच्छी से अच्छी टूल्स लाना. क्या कहते हैं उसे? लर्निंग टूल्स. लर्निंग टूल्स डिफरेंट आप क्या ला रहे हो, ये ट्रू है. ठीक है, डिफरेंट टूल्स, लर्निंग एलएमएसएस प्रोड्यूस कर रहे हो, इनोवेशंस यूज कर रहे हो ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम तक याद रहे. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. The primary method of teaching in Takshila was what? Demonstration, debate and discussion, project or question and answer. Primary method of teaching in Takshila. Now higher education mix कर दिया teaching में, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग पेपर में. So was it demonstration? Demonstration क्या होता है? टीचर क्लास में आपको कोई चीज दिखा के, डिपिक्ट करके, क्या कर रही है टीचर? आपको कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट शोकेस करके आपको चीजें समझाती है, डिपिक्ट करके, ड्रॉ करके, उसे डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं. आप कोई चीज दिखा के, जैसे फोन के बारे में बताएं तो फोन दिखाया. डिबेट एंड डिस्कशन कैसे हुआ? एक टॉपिक है, उसके बारे में डिबेट कर रहे हो.
वार्तालाप कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो चीजों के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, कोई एक टॉपिक दे दिया उसके बारे में आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। और क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे कि सोक्रेट्स करते थे, क्वेश्चन आंसरिंग से सिखाते थे। तो कौन सा मेथड यूज किया जाता था, इट वॉज बी, दैट इज डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर लगा होगा, बट राइट आंसर क्या है, दैट इज बी। Which among the following are used as learning management systems? इनमें से कौन से learning management systems हैं? Google Meet, Google Classroom, Joomla, then Google Jamboard and Moodle. Again, I'll give you time. Read it. What would be the right answer? So the right answer would be B. B right answer है. B, C and E. B, C and E. Google Meet क्या है, बेसिकली एक तरीके का टूल है जो टीचर यूज कर सकती है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फॉर सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पे गूगल जैमबोर्ड एज वेल, बट इट इज गूगल क्लासरूम जो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, Joomla and Moodle. Then we have list 1 and list 2. The types of evaluation and the main issue for evaluation. Program and intervention planning evaluation, process monitoring evaluation, impact outcome evaluation, cost effective evaluation. Effectiveness of a program देखने के लिए कौन सी evaluation होता है, need for a program intervention, efficiency of the service delivery and cost of the delivery of the service के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इजी, बस आप एनालाइज करो एक बारी इसको। जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो यू विल बी शॉक्ड। डी इज द राइट आंसर। इस पर डिस्कस भी क्या ही करेंगे, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 and 4. So we have program intervention. ये क्या होता है, जब आप प्रोग्राम में इंटरवीन कर रहे हो, इसीलिए प्रोग्राम इंटरवेंशन प्लानिंग करते हो। देन प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या होता है, किस तरीके से उसकी सर्विसेज आपने अच्छे एफिकेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ पूरी करी है। देन इम्पैक्ट एंड आउटकम देखने के लिए, मतलब इफेक्टिवनेस देखने के लिए कितना इम्पैक्ट आया, क्या वो इफेक्टिव था, बच्चों को सब चीजें समझ आई। और कॉस्ट देखने के लिए कॉस्ट डिलीवरी सर्विसेज करते हो। सच एन इजी क्वेश्चन, अ बोनस क्वेश्चन जिसके ही पेपर में आया था, बल्ले बल्ले है। Which of the following are true? Teaching is the process of effective communication relationships with students. Communication and learning are interdependent. Effective communication relationship means maximizing students' understanding. Teaching and communication are interdependent to each other. Instructional communication has no relation to students' success. What should be the right answer? Teaching is a process of effective communication relationships with students. Communication and learning are interdependent. Effective communication relationship means maximizing students' understanding. Teaching and communication are interdependent to each other. Instructional communication has no relation to students' success. The right answer would be A. A is the right answer. क्या क्या ट्रू है इसमें ये देखते हैं। A बिल्कुल ट्रू है, B और C भी ट्रू है। कैसे ये देखेंगे। A, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशन विद द स्टूडेंट्स। यस, अगर टीचर का स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, एमिएबल रिलेशनशिप नहीं है, देन देयर इज नो टीचिंग दैट इज हैपनिंग, राइट। टीचर इफेक्ट, स्टूडेंट इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, इट इज नीडेड। स्टूडेंट सक्सेस रेट हेल्पिंग बिहेवियर भी नहीं है बल्कि की है। ओके, सो देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द टू. Communication and learning are interdependent. Yes. What type of communication is used? We have transactional communication model that is used. जल्दी जल्दी हमें क्या चाहिए होता है, synchronous communication करते हैं in a classroom.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग. अच्छे से अगर टीचर ने बात कर ली है तो स्टूडेंट को भी ज्यादा ही अच्छे से समझ आएगा ना. दिस इज गुड. टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. वो इंडिपेंडेंट है, नो दे आर डिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. देन इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन क्या नो रिलेशन रखता है स्टूडेंट के सक्सेस से? नहीं, टीचर इंस्ट्रक्ट ही इस तरीके से करती है कि स्टूडेंट को सक्सेस मिले. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है. वी हैव ए बी सी एज द राइट आंसर. Name, so what is the name of the principle that states that students be either bored by work that is too simple nor left behind by teaching they cannot understand? कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि या तो बच्चे को बोर भी नहीं करना बहुत इजी पढ़ा के, ना उन्हें बहुत डिफिकल्ट पढ़ा देना कि समझ ही ना आए, तो मॉडरेट पढ़ाई होनी चाहिए. इज इट साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, serialization, reverse thinking, or problem of the match? What is the name of the principle that states that students be neither bored by work that is too simple or left behind by teaching that they cannot even understand? So the right answer is D, that is problem of the match. आपको ढंग से टीचर को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है एक स्टूडेंट को सही गलत क्या है, +1 पे जाना है लेकिन -3 पे नहीं चले जाना है, उसी डोमेन के हिसाब से अच्छे से पढ़ाना है. ये सारे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यही बताता है दैट द टीचर हैज टू बी इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे आर नॉट बोर्ड. द टॉपिक्स दैट शी हैज सेलेक्टेड शुड नॉट बी दैट सिंपल एंड नॉट दैट डिफिकल्ट. In teacher-centered learning, the teacher gives up the traditional decision-making role and chooses instead the role of a facilitator who focus on students' feelings. In learner-centered method, the teacher attempts to see the world as the students see it, creating an atmosphere very empathetic for communication. दोबारा रीड करो इसको, स्टेटमेंट को. इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी. सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर. D is the right answer. Statement 1 incorrect है because उसे ध्यान से रीड करोगे तो समझ आएगा. In a learner centered, not in a teacher centered, in a learner centered learning, the teacher gives up her role, अपना ट्रेडिशनल रोल एज अ गाइड. टीचर यहाँ पे या कह सकते हो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं रखती हैं, एज अ गाइड एंड अ फैसिलिटेटर बन जाती हैं. कहाँ पे यहाँ चेंज करना है हमें, यहाँ पे हमें लर्नर सेंटर्ड करना पड़ेगा. इन अ लर्नर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप हर ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेज इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर who focus on students' feelings. Second statement बिल्कुल true है. In a learner-centered method, the teacher attempts to see the world as the learners want to see it, creating a world that is very much holistic, learning-driven. Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? Pedagogical क्या होता है? So pedagogy, andragogy, heutagogy. Pedagogy होता है स्टूडेंट्स को सारी चीजें सिखाना, उनके साथ चलना. ठीक है. एंड्रागॉजी थोड़े एडल्ट लर्नर्स आ जाते हैं. ह्यूटागॉजी में यू डू थिंग्स ऑन योर ओन. सो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, selection of teaching methods and material, content analysis, selecting of evaluation devices. So right answer क्या है? C is the right answer. A, B and C. Right? Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? You formulate the objective, you select the goals and you analyze the content. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? pedagogical analysis कर रहे हो teaching का and learning का, evaluation का नहीं कर रहे हो. Given below are two statements. The ability to generate unusual yet appropriate responses to problems and questions is called as convergent thinking. The ability to produce responses that are based primarily on knowledge and logic are called as divergent thinking. Read the question again. Convergent, divergent होता क्या है? एक बार ये देखो. Convergent, sorry, don't, I just hope आपने right answer नहीं देखा है.
सो अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? ये मेरा एक मेन टॉपिक है और मैं इस टॉपिक से आपको एक और टॉपिक, एक और टॉपिक, एक और टॉपिक, ये 3 टॉपिक मैंने समझा दिए। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट, बहुत सारे टॉपिक्स एक टॉपिक से समझाया है। और कॉन्वर्जेंट क्या होता है कि मेरे को एक टॉपिक समझाना था आपको, एक मेन टॉपिक, तो मैंने सिर्फ इसी टॉपिक पे फोकस करा, किसी और टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करी। अब इस स्टेटमेंट को रीड करो। द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट appropriate responses to problems is convergent, it is divergent। और यहां पे क्या होगा? Here we have the ability to produce responses that are primarily based on knowledge and logic, convergent। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया था? राइट आंसर था हमारा बी। दिस मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि वो इंटरचेंज हो गई थी। Given below are 2 statements, assertion and reason. No test provides a particular or the perfect picture of the student's ability and skill. A test is only one small sample of a student's performance. कोई भी टेस्ट परफेक्ट पिक्चर तो नहीं दिखा सकता। राइट आंसर क्या होगा? ए। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। क्या वन शीट ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर? नो, राइट? सो नो टेस्ट कैन प्रोवाइड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ योर स्किल सेट, एंड दीज टेस्ट एक स्मॉल सैंपल है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। While designing assessments, the teacher must focus on which of the following as per outcome-based education: activities, reading material, prerequisites और लर्निंग आउटकम्स। टीचर किस चीज पे फोकस रखती है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर, मतलब टीचर को अच्छा आउटकम चाहिए आपसे, तो टीचर किस पे फोकस रखती है? द टीचर फोकसेज ऑन लर्निंग आउटकम्स। आउटकम की बात हो रही है तो लर्निंग आउटकम्स पे फोकस आएगा। इजी। Which of the following tools can be used as traditional offline teaching methods? Traditionally face to face। traditional मतलब कैसी एजुकेशन? face to face। तो उस पे आप कैसे पढ़ाते हो? प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, फिजिकल एंड LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। Which of the following tools can be used for traditional offline teaching? वेरी इजी, सी वुड बी द राइट आंसर। फिजिकल मॉडल्स दिखा के, टीचर क्लास में करती थी ना स्केलेटल सिस्टम, तो मॉडल दिखाया, स्केलेटन लेके आई है वो क्लास में। So what is the name of the process in which the listener provides the feedback of the speaker when the message heard and the emotion that conveyed, and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected? Active listening, active responding, active teaching और centering behavior. So ऐसा कौन सा प्रोसेस है in which the listener provides feedback to the speaker about the message heard? This is called as active listening. Active listening. Active listening क्या होता है? Immediately respond करना emotionally, अच्छे से मैसेज सुन के। And passive listening क्या होता है? Involve ना होना। Which among the following constitute personal competence? Personal competencies क्या है? Competencies are values, skill set आपका कैसा है? So यहाँ पे personal skill set की बात हो रही है। Empathy, motivation, social skills, self-awareness and self-regulation. Personal मतलब आपकी खुद की, आपके अंदर कौन सी skills हैं? Your skill set, your competencies. Right answer would be C, that is B, D and E. B, D and E. तो मोटिवेशन अभी हमने डिस्कस किया था, ये मोटिवेशन का कंट्रोल कैसा किधर होना चाहिए? या तो इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक, है ना? मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। सो मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में सही गलत खुद पता होना, एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, जैसा सेल्फ रेगुलेट करना आना चाहिए। सो बी, डी एंड ई। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स,
in a learning organization, the learning of teachers, their professional development, and learning of children, their education are inevitably complementary and mutually reinforcing. Then intrapersonal intelligence does not involve understanding the inner world of emotions and thoughts and developing the ability to control and consciously work with them. What should be the right answer? So let me tell you the right answer. The right answer is C. C right answer है. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. एक बारी analyze करते हैं कैसे. So in a learning, so ये true है और ये false है ना. C is the right answer. देखते हैं. So in a learning organization, the learning of the teachers, तो अगर आपके पास अच्छी टीचर्स हैं, कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, जो सीखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, दे आर ऑल्सो लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंट्रिंसिक. सो दिस मीन्स दैट द टीचर इज प्रोफिशिएंट, गुड एनफ फॉर अ चाइल्ड. सो टीचर एंड स्टूडेंट आर को डिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, राइट. टीचर अच्छा कर रही है, लर्नर्स भी अच्छा करने का ट्राई करेंगे. टीचिंग एंड लर्निंग टीएल प्रोसेस साथ ही चलता है. सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स लर्न एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीख करती हैं, इसी तरीके से लर्नर्स लर्न करते हैं, एजुकेशन सीख करते हैं, तो वो इनएविटेबली म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट दिखा रहे हैं. दैट इज ट्रू. लेकिन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अब इंटरपर्सनल होता है टॉकिंग टू समवन, इंट्रा मतलब अपने बारे में. सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्ल्ड एंड इमोशंस. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. इट डज नॉट मीन इट इन्वॉल्व्स. एक्चुअली इंट्रापर्सनल इज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और मेटाकॉग्निशन ओनली, है ना. आप इंट्रा मतलब इंटर मतलब बिटवीन टू पीपल, इंटरा मतलब वन सेल्फ, है ना. सो जब आप अपने बारे में, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एबिलिटी ऑफ कंट्रोल के बारे में जानोगे, तो आप क्या कर पाओगे, सेल्फ रेगुलेटेड रहोगे, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, है ना. यही सारी चीजें तो हमें चाहिए फॉर अ बेटर, फॉर बिकमिंग अ बेटर लर्नर. सो सी बिकम्स द राइट आंसर, राइट. सो आई होप ये सारी चीजें सबको समझ आई हैं. दीज वर सम क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग फॉर टुडेज क्लास. ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जिमरमैन का मॉडल मैंने आपको होमवर्क दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसे एक बार नोट कर लो. आई होप आपने इसे नोट किया है. I hope you have noted this. I'll give you time to note this. Zimmerman का मॉडल भी, I'll also show you the model. एक बार उस मॉडल को भी नोट कर सकते हो. So this model, एक बार इसे भी नोट कर लो. So this is the first phase. ठीक है. आप लिख सकते हो फोर थॉट फेज, फोर थॉट फेज, फोर थॉट, टास्क एनालाइज या टास्क एनालिसिस, देन गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देन सेल्फ मोटिवेशन, या आपके बिलीफ सेट करते हो यहाँ पे, जिसमें सेल्फ एफिकेसी, आउटकम एक्सपेक्टेशंस, टास्क इन ट्रस्ट एंड वैल्यू एंड गोल ओरिएंटेशन आता है. So first is forethought phase, forethought phase. Then second, performance phase. So you have self control, इसमें आप task strategies लाते हो, self instruction, imagery, time management, environmental structuring, help seeking, interest enhancement, self consciousness या consequences set करते हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो उसके बाद, वेयर मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग इज डन एंड सेल्फ रिकॉर्डिंग इज डन. अपने आप को रिकॉर्ड करना मतलब अपने आप को एनालाइज करना. देन सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में सेल्फ जजमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, कैजुअल एट्रीब्यूशन. देन सेल्फ रिएक्शन वेयर यू विल सी अफेक्ट क्या है मेरे ऊपर, सेल्फ सैटिस्फैक्शन एंड अडेप्टिव एंड डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज.
सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसे जिमरमैन मॉडल कह सकते हो, ZIMMERMAN. ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट में ये भी याद रखना, ठीक है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. एंड आज के जितने भी हमने PYQs किए उससे आपको कितने नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगा होगा. वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, मेमोरी, देन जिमरमैन्स मॉडल, LMS. वी डिस्कस्ड LMS ऑल्सो, दो हमने उसे डिटेल में नहीं पढ़ा, बट in the coming period, in the coming classes, I'm pretty sure we have more questions related to LMS. I will talk about LMS in detail. हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. देर आर डिफरेंट टूल्स दैट आर यूज्ड. वी टॉक्ड अबाउट दोज टूल्स. ट्राई टू रिसर्च अ लिटिल बिट मोर अबाउट देम ऑन योर ओन, राइट. झूमला एंड मूडल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ोगे. टेक दैट एज योर होमवर्क एज वेल. Okay, so with this I can wind up the class. I hope you guys understood these 25 questions that we did in this class. We have other classes coming up and उसके अंदर भी हम teaching aptitude ही discuss करेंगे. So you write this. I will switch off the camera in about 2 to 3 minutes and I'm sure you must have written this till now.